friends, I welcome you all on my channel, The Opinion Platform. Today, we are going to speak about the issue which in India is hardly considered an issue. In fact, the Prime Minister of India, Narendra Modi himself, has given a term during election campaign as Divyang. I hope you must have understood the reference as what we are going to talk today. Yes, we are going to talk today about the disability problem in India. And to speak on this issue, we have one of the most conscious student who is a fighter, who is fighting in his own life against all odds, and he's fighting against the inequalities which is maintained by none other than the system. It is very surprising that I am saying the system maintains the inequality. Yes, I am with Shorya Sood, who is a PhD scholar at Jawaharlal Nehru University, who is in second year of his PhD. And today I will ask him certain questions, how he faces what kinds of challenges and how he resolves and how he solves his problems, and what are the things, what are the agendas, what are the aims he holds for his own life. Shorya, I welcome you on my channel, The Opinion Platform. My first question to you would be, the Prime Minister Narendra Modi has given a term for disabled people in India as Divyang, something which is divine. Do you find any divinity in being disabled student or person or individual? Thank you for giving me this opportunity to express about my life. It's a very good question, and I have thought this for a long time, that what is the term Divyang and all. I also feel that in India, people either give you a divine status or you think of you as nothing. So या तो आप बिल्कुल ही गए गुजरे इंसान है, या आप में कोई दैवीय शक्ति होती है. मुझे लगता है कि मेरे को दोनों ही चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम है. आई हैव प्रॉब्लम्स विद बोथ द थिंग्स. मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए. वी शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर द इंडिविजुअल आई एम, नॉट फॉर एनी डिविनिटी, नॉट एज एनी गया गुजरा. मैं भी आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ. एक मेरे भी वही सोचने का नजरिया है जो बाकी लोगों का है. वही तरीके से एक नॉर्मल जिंदगी जीने की आशा है, और वही चीजें करने की वो इच्छा होती है जो व्हाट एनी अदर पर्सन वुड लाइक टू डू. तो मुझे नहीं लगता कि ये दिव्यांग टर्म से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि ये हमें वही सिंपैथेटिक नजरिया देता है जिससे हम लड़ते हैं रोज. तो इसलिए मुझे तो इस टर्म से बहुत प्रॉब्लम्स है पर्सनली. So basically you are saying that the term Divyang further mocks the disabled people, disabled individuals, and it does not contribute anything in their struggle. So yes, it actually is not at all a good term, and it reduces our dignity as an individual. तो मुझे नहीं लगता ये हमें सिंपैथी लगती है. मुझे तो, मैं तो पर्सनली इस टर्म से, कि मैंने तो कभी सुना भी नहीं था ये टर्म पहले दिव्यांग क्या होता है, बट मुझे तो इस टर्म से बड़ी वो आई डोंट लाइक इफ एनीवन refers to me as Divyang. I become very uncomfortable. Okay, since you function every day with a lot of struggle, probably with the companionship of your friends in your life, election is going to happen in India. What do you feel as a disabled individual? Do you feel yourself equally the part of democratic pride that we as an Indian
otherwise take? आपको मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि हम 2001 तक we were not even counted in the census of the country. तो आप सोच ही सकते हैं कि disabled person with disability are at the margins of the society. And presently, honestly speaking, I don't think that we can say that democracy belongs to each and every section of the society, being the condition of persons with disability in our country. Higher education के एजुकेशन में देख लीजिए कितना कम टर्न आउट है. 8% ऑफ आई थिंक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव हायर एजुकेशन. तो आप देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. तो हमें घर से ही नहीं निकाला जाता. आज भी ऐसे फैमिलीज हैं जो एक शर्म महसूस करते हैं अपने डिसेबल बच्चे के साथ बाहर निकलने में या क्योंकि there is so much stigmatization and there are so many accessibility related problems. Even if let's say we want to stage a protest, those protest sites तक जाने में ही हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना accessibility related problems होते हैं. So how will we raise our issues? तो हम तो अपना issue भी नहीं उठा सकते. Okay, since you are talking about the disabilities problems and especially the problem of accessibility, but I'm asking, as you have said very important aspect, that before the previous census disabled people were not even counted. Now in India, caste is something which is a real problem. Do you think there is a caste discrimination even among concerns of addressing the disabled question or disabled concerns? Do you think casteism exists among disabled people? I think casteism as a problem cuts across the boundaries of disability, gender, class. So casteism, so it's a common, and within the disability section also, I think casteism is prevalent. बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा कि एक बंदा एक तरीके से मार्जिनलाइज है तो वो ज़रूरी नहीं कि दूसरी चीज़ों के प्रति उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन हो. वो एट द सेम टाइम ही कैन बी कास्टिस्ट, ही कैन बी मिसोजिनिस्ट, being himself at the margins of the society. There are so many forms of discrimination among persons with disabilities I have come across when the question of employment comes. I remember one of the meetings which I cannot openly quote here, but the content was so shocking and problematic to my conscience that today I think it will be appropriate to question you on this. That in Delhi University, a seat was to be declared for the person with disabilities. But for so many reasons, it is specifically related to one of the colleges. And then I came to know that PWD position was not being declared because even among PWD person with disabilities, they were not able to decide that this among PWD to which category it will go. Will it go to OH category or VH category, or there are other categories that exist? So do you think that before we talk about the equality and equality of opportunities with persons with disabilities, this problem should also be addressed? For example, your disability will, I think, come in OH, orthopedic OH, right? But most of the people observe that most of the positions which are advertised in government sector goes to VH category. So is there any such kind of discrimination that you have also faced or experienced or you know about? Yes, so basically what people say, they have an idea about disability. Disability is a homogeneous category. So like I am living with cerebral palsy. So within cerebral palsy also there are various forms of disability.
So not everyone is wheelchair bound, not everyone so, some people are intellectually disabled, some people have this are wheelchair users, some people can walk independently, but what our law assumes is that it's a homogeneous category, so it is based on the medical model. Now आप जानना चाहेंगे मेडिकल मॉडल, लोगों को बहुत पता नहीं है. मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी ये कहता है भाई आपका डिसेबिलिटी जो प्रॉब्लम है, कंडीशन है, उसके बेस पे ये डिसाइड करता है आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है. तो जो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है वो ये बात करता है कि आपके लिए कैसे जॉब सूटेबल बनाई जाए. तो मैं अभी भी आप मैंने ऐसा सुना है कि मेरे फ्रेंड्स के कि आप वो ऐसे बोलते हैं आप ये जॉब कर पाएंगे. अच्छा आप लिख के दिखाइए बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे कि आप कैसे लिख पाएंगे. तो मुझे लगता है ये एक ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस है किसी के लिए भी कि आप लिख के कैसे दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग यूजिंग अ ब्लैक बोर्ड. मुझे लगता है कि अगर आप स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चर्स आप अच्छे से दे सकते हैं तो आप उस जॉब के लिए फिट है. लेकिन ये सिर्फ एक ह्यूमिलेट करने के लिए. और एक मैंने सुना है ये स्टूडेंट के जैसे प्राइवेट कंपनीज में कि आपको जॉब वीआई है तो जी आपको नौकरी के लिए उसी टाइम मना कर देते हैं. तो ये तो मैंने पर्सनली किया. और हाँ, विद इन डिसेबिलिटी ऑल्सो देर इज इनसेंसिटिविटी एज इन कि एक उनको लगता है भाई ये हमारी तरीके की डिसेबिलिटी के प्रति नहीं सेंसिटिव, हमें लगता है वो हमारी तरीके नहीं. तो विद इन डिसेबिलिटी ऑल्सो वी लैक सॉलिडेरिटी, वी लैक एम्पैथी, वी लैक. वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस होना चाहिए लॉन्ग टर्म में. You are a student and scholar of political science. Have you heard the name of Professor G.N. Sai Baba? Yes. What do you want to say about him? Professor G.N. Sai Baba also was living with disability, but the conditions in which he was in jail, I think was not. It was the apathy of the law. Apathy of the law. Apathy of the law. बिकॉज हमें पता ही नहीं है लॉ में भी कि आपको कैसे एक आपको किसी एक नागरिक जो डिसेबिलिटी से के साथ जी रहे हैं उनके साथ कैसे उनकी ज़रूरतों को आपको कैटर करना है. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है कि कैसे लॉस भी आपको उस तरीके से कैटर करने चाहिए जो ह्यूमन हो. और laws aim should not be to marginalize कि आपको आपकी जगह मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी जगह मतलब बता रहे हैं आपको कि आपके लॉ आपको एक ऐसा होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा वो एक काइंड एक थोड़ा सा रिफॉर्मेटिव अप्रोच भी होना चाहिए. ये जो पुराना अप्रोच है जो कि मतलब मुझे लगता है वो भी एक वजह है जो हम लॉ के प्रति हमें नई सेंसिटिविटी जैसे डिसेबिलिटी या क्योंकि लॉ भी बड़ा हार्श बना रखा है हमने. जो कॉलोनियल एरा के लॉज हैं वही हम आज भी कंटिन्यू कर लेते हैं. तो मुझे लगता है इन लॉज में भी बहुत तब्दीली होने की ज़रूरत है. There are so many people who are anti Professor G.N. Sai Baba's ideology. I have heard them saying in a very brutal language that look how dangerous Professor G.N. Sai Baba is, that despite being 90% or more than 90% disabled, he thinks and conspires against breaking the nation. The God has done good making him disabled. What would you like to say on such responses? आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि इंडिया में इंसेंसिटिविटी तो है ही है. तो लोग आप कहेंगे आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है. या मैंने ऐसा भी मेरे साथ पर्सनली मैंने देखा क्यों कहते हैं आप प्रायश्चित क्यों नहीं कर लेते, माला जपा कीजिए. मतलब ये तो आप देखिए लोगों की अंडरस्टैंडिंग है. तो मुझे लगता है ये हमारे लोगों की सोच को दर्शाता है कि अगर आप ऐसी बात है. देखिए
एक मैं इस पे और एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा, आप किसी का क्रिटिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी आइडियोलॉजी का क्रिटिक कर लीजिए, एंड आइडियोलॉजी इज मेंट टू बी क्रिटिक, देयर इज नो आइडियोलॉजी फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, लेकिन देयर इज अ वे ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो विच वी डो नॉट नो। मुझे लगता है हमें क्रिटिक करना हम लोगों के साथ एकदम ऑफेंसिव हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, वो कोई क्रिटिसिज्म वो एक अटैक होता है, वो एक आपके ऊपर जैसे वो नहीं होता है, जैसे बुलडोजर है जैसे चलाना चाहते हैं लोग, वो गलत चीज़ है। क्रिटिक कीजिए और एक रिस्पेक्ट के साथ कीजिए, एक वो भी एक डिग्निटी, एक बिना किसी की डिग्निटी हर्ट किए ये भी आप क्रिटिक कर सकते हैं, लेकिन हमें ना तो ये इजाज़त और ना ही इसकी तरह की हमें कोई संस्कृति है। तो आप ये सब बातें जो उनके साथ आ रही है वो वहीं से आ रही है, जिस तरीके के लोगों की सोच है, जिस तरीके के अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, और जिस तरीके लोगों की यहाँ पे माइंड सेट है डिसेबिलिटी को लेकर। तो इसके ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस तरीके की बातें करके। मुझे ऐसा भी लगता है कि एक डिसेबल्ड बंदे को हर टाइम अपने को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं आई एम एज गुड एज, मतलब अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो वो पूरे डिसेबिलिटी को लेकर होती है, बट अगर कोई किसी दूसरे से गलती होती है तो वो उसकी गलती होती है, वो मिस्टेक है, वो हो जाती है। तो ये जो एक चीज़ है ये मुझे बहुत ही गलत लगती है और बहुत ही इट इज़ अ सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। Last question of today I will ask to you. Do you think disabled people should do politics and they should participate in all activities that so-called non-disabled people do? For example, doing politics, especially believing into ideology such as the radical ideology or something like G.N. Sai Baba was charged with. So they should do politics or they should focus on their life, survival and that's all? जी बिना पॉलिटिक्स के तो लाइफ ही नहीं है। मुझे लगता है लाइफ एग्जिस्ट विद पॉलिटिक्स ओनली, और हम लोग सब पॉलिटिक्स करते हैं कॉन्शियसली, एट सर्टेन टाइम्स वी से कि हम नहीं एंड ये एक चीज़ हमें ये निकालनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स एक नेगेटिव चीज़ है। पॉलिटिक्स एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कि आपको अपना सोसाइटी में आपकी भी एक जगह बनानी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, वो भी एक तरीके की पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स के अराउंड ये नेगेटिविटी है, ये हमें बहुत दूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि डिसेबल मुझे तो लगता है सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉन डिसेबल कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता, आप देख सकते हैं ये मेरी बैटरी ऑपरेटेड चेयर पे मैं ये यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ मुझे कोई ऐसा फ़र्क न, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं एकदम ही किसी नॉन डिसेबल बंदे की तरह हूँ। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी और ये सिर्फ एक बैरियर है जो समाज ने बनाया। तो अगर अभी मेरे को मैं कैब से रोज़ आता हूँ तो मुझे किसी ने बोला कि आपको तो दिक्कत बड़ी होती होगी, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि दिक्कत हमारे दिमाग में है। दिक्कत एक्चुअली कंडीशन की नहीं है, दिक्कत हमारे सोच की है। जो हमारी सोच है वही दिक्कत इतनी बना देती कि वो बंदे को कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। तो मैं तो जी मुझे कई बार पूरा दिन पे हो जाए तो मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि डिसेबिलिटी है, लेकिन ये लोग जो हैं आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी, ये होती होगी। मैंने कहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत आपकी सोच से, आपके नज़रिए से, आपने जिस तरीके से सोसाइटी का डिज़ाइन बनाया उस तरीके से, जिस तरीके की एबलिस्ट माइंडसेट है उस तरीके से। आज मैं बहुत सारी हिस्टोरिकल वॉक्स वगैरह के लिए दिल्ली के पूरे कोने में मैं घुमा हुआ हूँ, DMR जो दिल्ली मेट्रो की फैसिलिटीज़ के कारण। तो मुझे तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता कि मैं डिसेबल, मतलब ये मेरे लिए बैरियर बनी हुई है। बैरियर लोगों का मानसिकता है, लोगों की सोच है जो कि एकदम हमें ये समझती है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। लोगों की ये मेंटालिटी है कि आपको हर समय दिखाओ। लोगों की ये मेंटालिटी जो देख के ये समझती है अच्छा आप तो घर पे बैठते होंगे, आप तो पता नहीं जाते क्यों होंगे। फिर इतना लो एक्सपेक्टेशन है कि बस
मतलब कि वो छोटी सी चीज़ भी उसमें भी कई तो मतलब मुझे लगता है कि एक हमें भी बराबर तरीके से देखा जाना चाहिए और हम लोग सब कुछ कर सकते हैं और बिल्कुल होना चाहिए पॉलिटिक्स में। बल्कि मुझे तो खुद ही लगता है कि कई बार कि पॉलिटिक्स बहुत एक अच्छा मीडियम बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट जहाँ पे हम अपने राइट्स और अपनी प्रॉब्लम्स को और आपसे मैं जिस लैंग्वेज में आज कन्वर्स कर पा रहा हूँ अपनी बात रख तो वो भी मेरी एक सब्जेक्ट की देन है और थैंक यू। Friends, as Shorya Sood has rightly pointed out, that more than the physical disability, the mentality is the major problem. If the society resolves, if society decides, if the people around disabled people decide to solve the problem, it can be easily solved. Because if we do not suffer from ill mentality, no disability can be barrier to exist with dignity and with respect in life. Shorya, thank you very much. You have given very precious time for my channel, the Opinion Platform. We'll meet again and we'll talk. Thank you very much. Thank you.